You can all switch off your cameras and mics so that bandwidth will be consumed by the story only. Is my screen visible to all of you? Yes. Okay, so today's story is about Gulliver Travels. Fine. Now, who was Gulliver? Gulliver was a sea captain. Gulliver was a sea captain. समुद्री जो जहाज होता है ना, समुद्र वाला जहाज बेटा, उसके कैप्टन थे गुलिवर. And Gulliver Travels is a parody. It's an adventure story, fine, which was written by an Anglo-Irish author, Jonathan Swift. Jonathan Swift was the writer who wrote series of Gulliver Travels. Fine. And these travels, they describe the stories and the travels. Vamsi, switch off your mic, beta. Vamsi, switch off your mic. Vamsi, switch off your mic. You can just mute. Yeah, I did it. Yeah, I did it. So, Gulliver Travels is a parody which was written by Jonathan Swift, and it's an adventure story. Fine, ये adventure stories है, series of adventure stories जो गुलिवर की life को describe करती हैं. The name of Gulliver, the full name of Gulliver was Lemuel Gulliver, and these series of stories, they describe Gulliver travels to the remote regions of the world. Gulliver was an English sailor actually. Gulliver बेटा England को belong करते थे, fine. लेकिन उन्होंने बहुत different जगह पे travel किया. बहुत remote जो जगह थे वहां पे उन्होंने travel किया. Fine. He traveled to very long and far lands in the world. Fine. So that is Gulliver, if you can see in the picture. And Gulliver was the sailor or the sea captain of the ship. And Gulliver was enjoying his journey, fine. And once he started off for his journey to follow this. Yeah. Ma'am, can you please repeat? Yes, sure. Why not? I've just started with Gulliver Travels. Yeah, okay. Fine. So Gulliver was an English sailor who was traveling to faraway lands all over the world. And the full name of Gulliver was Lemuel Gulliver. Fine. And Lemuel Gulliver was traveling to faraway lands. Fine. For business, for adventure. Once he started from England to travel to some faraway land for a business, and he was sailing a smooth journey for a few days. Fine. And he was enjoying his stay on the ship, and he was enjoying his journey. And what happened that while they were smoothly sailing through the sea and the ocean, and they were traveling to the faraway land, suddenly the weather conditions become unfavorable. वो बेटा अपनी जर्नी कर रहे थे, गुलिवर जो थे जहाज पे अपनी जर्नी को बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बड़ा स्मूथली सेल कर रहे थे. When he was sailing smoothly, fine, after a few days, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मौसम बहुत खराब हो गया, बहुत ज्यादा तूफान आना शुरू हो गया. Fine, suddenly very strong storm started coming. Weather conditions जो थी वो बड़ी unfavorable हो गई. और सब लोग जो क्रू था, पूरा शिप का क्रू, मतलब बेटा क्रू होता है जो शिप में सेल करते हैं along with the passengers, जो शिप को चलाते हैं, शिप को मैनेज करते हैं, उनको हम शिप क्रू बोलते हैं. तो शिप क्रू जो था सारा बड़ा स्कैर हो गया, बड़ा डर गया. वो लोग अब सोच रहे थे कि दिस शिप, I don't know what will happen to this ship, that whether we'll be able to sail smoothly, whether we'll be able to reach that faraway land or not. Fine. और हो सकता है हम सब खत्म हो जाएं, मर जाएं. Fine. अभी वो ये चीजें सोच ही रहे थे कि weather और ज्यादा unfavorable हो गया. Weather conditions became very, very stringent. Fine. And ship started sinking into the sea. Ship started drowning into the sea. Ship wrecked and it started drowning into the sea.
because of unfavorable weather conditions, because of storm. क्योंकि बेटा जो storm होता है, fine, जब वो ship पे storm होता है, fine, जो ship होती थी पुराने जमानों में, अगर आप देखो ये वाली जो ship है, fine, it was sailing because of the air. अगर एयर की डायरेक्शन फेवरेबल है, करेक्ट है, तो शिप सही से सेल करता था. लेकिन अगर एयर की डायरेक्शन खराब हो जाए, बहुत ज्यादा स्टॉर्म आ जाए, बारिश आ जाए, तो शिप कुड नॉट सेल. तो शिप, यहाँ पे आप देखो, शिप स्टार्टेड सिंकिंग इनटू द सी एंड अल्टीमेटली इट स्टार्टेड ड्राउनिंग. एंड द होल क्रू एंड द पैसेंजर्स फ्रॉम दैट शिप, उन्होंने रेस्क्यू बोट्स में शिफ्ट कर लिया जल्दी से जल्दी, ताकि वो अपनी जान बचा सके. सो सारा क्रू जो था along with the Gulliver, they shifted to rescue boats. हर शिप में बेटा अगर शिप wreck होने के चांसेस हो या लगे कि जो शिप है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो पैसेंजर्स हैं उनको रेस्क्यू बोट में शिफ्ट कर देते हैं. रेस्क्यू बोट वो बोट होती है, फाइन, जो थोड़ी दूर तक सेल करके, फाइन, पैसेंजर्स को किसी सेफ आइलैंड या सेफ जगह पे ले जाती है. सो शिप में से सारे जो पैसेंजर्स थे, fine, they shifted to rescue boat and they started sailing towards some safe place. But that rescue boats, those rescue boats, they were not very strong rescue boats, fine, and they could not be taken for granted for a long journey. उन पे बहुत ज़्यादा लंबा सफर नहीं किया जा सकता था. And one of the reasons was weather was very very unfavorable. तो वो जो strong boat भी थी ना बेटा, वो storm में upside down turn कर गई, उलट गई, फाइन. और सभी के सभी पैसेंजर्स, तो क्रू और पैसेंजर्स जो थे, जो रेस्क्यू बोट में बैठे थे, वो भी शिप में ड्राउन होना शुरू हो गए, फ्लो करना शुरू हो गए पानी के साथ. एंड गुलिवर ऑल्सो, आई मीन इट हैपेंड द सेम विद गुलिवर एज वेल. सो गुलिवर ऑल्सो स्टार्टेड फ्लोइंग विद द फ्लो ऑफ द सी, फाइन, विद द फ्लो ऑफ द वाटर. एंड अल्टीमेटली व्हाइल गुलिवर वाज फ्लोइंग विद द फ्लो ऑफ वाटर, गुलिवर को जो शिप रैक हुआ था उसमें से ही फाउंड अ लॉग. उनको एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा पीस मिल गया, वुड लॉग. तो गुलिवर ने उसका सहारा ले लिया, फाइन. गुलिवर गॉट अटैच्ड टू इट, गुलिवर ने उसे पकड़ लिया, फाइन. एंड गुलिवर स्टार्टेड स्विमिंग, स्टार्टेड सेलिंग विद दैट वुडन लॉग टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट, टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ वाटर. तो वो जो फ्लो ऑफ करंट था, फाइन, गुलिवर को फ्लो करता लेकर चला गया, धीरे धीरे उसको फ्लो करके, फाइन, लैंड की तरफ ले गया. एक आइलैंड आ गया धीरे धीरे, तो वो एक लैंड पे पहुंच गया गुलिवर. एंड गुलिवर रीच्ड अ लैंड. इट वाज अ स्मॉल आइलैंड आफ्टर फ्यू डेज, फाइन, व्हाइल फ्लोइंग विद द करंट ऑफ वाटर, फाइन. बट जब तक वो वहां पे पहुंचा, उस लैंड पे पहुंचा, he was so exhausted after sailing in the water, cold water for so many days, that he fainted immediately. वो immediately faint हो गया, बेहोश हो गया, and he fall on the ground and he slept. And when he woke up, he found himself tied in the ropes from head to toe. जब वो जगा, जब उनकी आंख खुली, गुलिवर की आंख खुली, तो उन्होंने अपने आप को सर से लेके पांव तक रोप्स में बंधा पाया. और उनके जो बाल थे और वो जो रोप्स थी, they were tied with nails along with the ground. And when he opened his eyes and see clearly, there were small dwarf-sized people. गुलिवर का जितना पाम था, हैंड का पाम होता है ना हमारे हाथ की हथेली, गुलिवर के हाथ की हथेली जितने साइज के लोग थे वहां पे. तो गुलिवर ने सोचा कि मैं कहां पे आ गया हूं. दिस लैंड is made up of, okay, I mean, mountains and greenery and trees, but what kind of human population is residing on this land? यहाँ पे कैसे लोग हैं? वो बहुत ही सरप्राइज था, बहुत ही शॉक था. Similarly, जो वहां पे लोग थे, they were also surprised and shocked seeing a man of such a huge and giant size. They were also surprised and shocked. I mean, both sides were surprised. Fine. Now, those people who were residing on that land, fine, they were very small in size, fine. They were very scared of Gulliver, and they were trying to, trying to attack Gulliver by throwing arrows on him, fine. And they were very, very scared of Gulliver. And Gulliver ultimately said to them, please don't harm me. I'm a human being like you.
though my size is little larger, but I am also a human being. गुलिवर ने कहा, प्लीज आप मुझे तकलीफ मत पहुंचाओ, मैं भी आपके जैसा इंसान ही हूं, फाइन, तो मुझे प्लीज आप तकलीफ मत पहुंचाओ. एंड ही ऑल्सो सेड, आई विल नॉट मेक एनी हार्म टू ऑल ऑफ यू, मैं आप लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, आप प्लीज मुझे मारो मत. देन दे स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए, उन्होंने गुलिवर को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया. बट फॉर फ्यू डेज they kept Gulliver tied there on the seashore only. उन्होंने उस समुद्र के किनारे गुलिवर को वहां पे टाइड रखा, फाइन, पर अटैक करना बंद कर दिया. और वो गुलिवर को पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना भी वही देते रहे. They didn't open his rope ties. They didn't want to, because they thought Gulliver is very giant in size, very huge in size, and maybe if he gets up, maybe he kills all of them. उन्हें लगा कि अगर गुलिवर उठ पड़ेंगे तो सबको मार देंगे, तो वो गुलिवर को वहीं पे खिलाते पिलाते रहे, क्योंकि वो मारना नहीं चाहते थे गुलिवर को, और उन्होंने उसे वहीं पे बंधा रहने दिया. अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू डेज वहां के किंग को पता चला कि मतलब पब्लिक के पास एक बहुत बड़ा जायंट सा ह्यूमन बीइंग सीशोर पे मिला है. पब्लिक को एक बहुत बड़ा सा जायंट human being seashore पे मिला है. Fine, I mean that land, that people of that land, they have found a very large-sized human being, fine, who has come sailing across the sea, who has come flowing with the flow of water. Now, children, interestingly, this land was known as Lilliput. ये जो land पे गुलिवर पहुंचे थे, fine, जो island था, इस island का नाम था Lilliput. Lilliput is a land of small people. Lilliput means land of small people. तो जब लिलिपुट के किंग को पता चला कि उन सबको एक आदमी मिला है ऐसा बहुत बड़े साइज का, तो then he ordered his soldiers and he ordered people to bring Gulliver to the city. So what they did, they tied Gulliver with the ropes to a carriage, and that carriage was being pulled by a large number of horses and army men, and he was taken to the center of the city. Center of the city में लेकर जाकर उसकी जो ropes थी उन्होंने वो खोल दी, and they let Gulliver free. Fine. अभी king उनसे नहीं मिले. Fine. And people let Gulliver free. और गुलिवर ने कहा कि मैं लेटे लेटे बहुत थक गया हूं, I just want to rest. तो उन्होंने गुलिवर को रहने के लिए शहर का सबसे बड़ा घर दिया. They offered Gulliver to stay in a very, very big house of the city, which was assumed as temple. But that very big house was not big for Gulliver. It was small in size as compared to the size of the Gulliver. So Gulliver has to crawl in to get into the house. So Gulliver crawl करके उस घर में चले गए, and he rested for few days. Fine. Then he was taken to meet the king. Then king asked Gulliver that how have you come? Then Gulliver explained and narrated him the whole story, that he was sailing in his ship and shipwreck occurred, and while flowing with the flow of ocean current, Gulliver has reached the land of Lilliput. तो गुलिवर ने कहा मैं लिलिपुट में फ्लो करता करता आ गया क्योंकि मेरा शिप टूट गया और शिप मेरा सिंक कर गया. तो मेरा जो शिप था वो सिंक कर गया, तो मैं करंट के साथ फ्लो करता करता लिलिपुट में आ गया. किंग ने कहा यू कैन बी स्टेइंग इन लिलिपुट, आप लिलिपुट में रह सकते हो, प्रोवाइडेड आप लिलिपुट के जितने भी लोग हैं उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाओगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे. Yes, beta. Ma'am, your voice is cracking. My voice is cracking? Yes, It should ma'am. not crack. Should not crack. Ma'am, your voice is not cracking. Ma'am, it's okay. Ma'am, but cracking. Ma'am, आप rejoin करो हैमरिन, दोबारा से rejoin करो. Okay, ma'am. हाँ, rejoin करो. Good morning, ma'am. Good evening, beta. Good evening. Okay. So, गुलिवर को उन्होंने कहा you can stay in the land of Lilliput provided you do not do any harm to the people who are staying here. तो आप कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे उन्होंने. और you will work actually, आप फ्री नहीं बैठोगे, you will work fine for your livelihood. आप अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करोगे, because the amount of food Gulliver was eating was too large as compared to
what people of Lilliput they were eating, because वो बहुत small size के थे, तो वो बहुत कम खाते थे. गुलिवर का साइज बहुत बड़ा था, he was huge in size, so he used to take normal diet जो human beings खाते हैं. तो वो किंग को लगा ये तो बहुत सारा खाना खाएगा, अब हम क्या करें. उन्होंने कहा आपको हमारे किंगडम के लिए काम करना पड़ेगा. So Gulliver was made to sign a treaty, fine, with the land of Lilliput that he will work hard, fine, and he will help people of Lilliput in construction of buildings, fine, and he will not make any harm to the people of Lilliput. वो सबकी help करेंगे, fine, सबकी help, okay, वो सबकी हेल्प करेंगे. जो भी लिलीपुट में रह रहा होगा, जिसको भी लिलीपुट में गुलिवर की हेल्प की जरूरत होगी, गुलिवर विल बी हेल्पिंग दैट पर्सन, एंड गुलिवर विल बी हेल्पिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स, बिकॉज गुलिवर वाज वेरी ह्यूज एंड जायंट इन साइज. तो वो गुलिवर बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, क्योंकि वो जिन घरों में रहते थे उनका साइज बहुत ही छोटा था. तो गुलिवर स्टार्टेड वर्किंग एंड हेल्पिंग द पीपल ऑफ लिलीपुट. फाइन. तभी अभी थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. I mean, things were going smooth and steady. And suddenly what happened was that the neighboring island of Lilliput, planned to attack Lilliput. Neighboring island of Lilliput was known as Blefuscu. ब्लेफिस्कू था बेटा नेबरिंग आइलैंड लिलीपुट का. ये हाइपोथेटिकल नेम्स हैं, एक एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, स्टोरीज के नाम है. तो ब्लेफिस्कू वाज द नेबरिंग आइलैंड ऑफ लिलीपुट, एंड पीपल हु वर लिविंग इन ब्लेफिस्कू दे प्लान टू अटैक लिलीपुट, फाइन, एंड किंग वाज वेरी वेरी अपसेट अबाउट इट. सो किंग एंड हिज चीफ एडवाइजर्स they decided that why not they ask Gulliver for help, because Blefuscu was also the land of dwarfs. They were also that was also the land of small people. तो उन्होंने सोचा why not asking Gulliver for help. So they asked Gulliver that whether he'll be helping them to fight against their enemy and their neighboring island. Gulliver said that as I'm staying with you people, as I'm part of Lilliput now, so I will definitely help you out. So Gulliver decided to help them. Fine. And Gulliver decided to help them. To whom it is not clear? Dhriti said that. You can please rejoin. Yeah, she just left. Yeah. Meena, is my voice clear? No, it's clear. It's quite clear. Okay, I'm able to hear. Let's continue. So this land of Lilliput, fine, was surrounded by a water. Bay था, उन दोनों के बीच में एक छोटा सा पानी का, you can see थोड़ा सा area, bay जिसको हम बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं उसको हिंदी में. Fine. They had a small portion of sea which was lying between. There was a small portion of sea which was lying between the islands of Lilliput and the islands of Blefuscu. And you can see in the picture, Blefuscu was preparing his army ships to attack Lilliput. तो गुलिवर ने कहा, जो भी लोग थे आइलैंड के, गुलिवर ने कहा, you start making a very long rope, as long as you can. You can tie knots, you can do whatever you feel like, but I want a very, very long rope. So people of the island of Lilliput, they prepared a very, very long rope, and Gulliver took that rope with him, fine. And what he did was, when it was night, my screen is struck. When it was night, what Gulliver did was, Gulliver took that rope which people had prepared with him and started moving towards the island of Blefuscu. रात के समय गुलिवर ने क्या किया, वो सारी की सारी रोप ली, फाइन, बड़ी सारी स्ट्रिंग थी जो रोप की, people had prepared it, जो लोग थे वहां के उन्होंने बना दी थी गुलिवर को. उसने उस रोप को रोल किया, फाइन, अपनी आर्म में डाला, लेफ्ट आर्म में, फाइन, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग थ्रू सी टुवर्ड्स द आइलैंड ऑफ ब्लेफुस्कू. वो ब्लेफुस्कू आइलैंड की तरफ चलना शुरू हो गए. वहां पे आइलैंड पे पहुंचकर
उन्होंने वो जितने भी शिप्स थे आर्मी के, फाइन, नेबरिंग कंट्री जो था उनका, उनके जो शिप्स थे उनको रोप के साथ टाई किया. एंड आफ्टर टाइंग दोज शिप्स विद दैट रोप, फाइन, गुलिवर started to move towards the island of Lilliput. गुलिवर ने शिप्स को टाई किया रोप के साथ और उन्हें लिलीपुट की तरफ खींचना शुरू कर दिया. He started taking them towards the land of Lilliput. और वहां पे पहुंचकर, फाइन, जितने भी आर्मी के सोल्जर्स थे उन शिप्स में बैठे हुए थे, फाइन, they were made prisoners by the army of Lilliput. And Lilliput people, they were super happy. They were very, very happy. They were overjoyed because they conquered the island of Blefuscu without any war, without any fight. There was no loss of life. कोई जान का नुकसान नहीं हुआ. Without any fighting, they could conquer over them. Fine. There was no fighting, and even then they won. उनको लगा वो जीत गए. उन्होंने किंग को ये सारी खबर जो थी, ये सारी न्यूज दी कि गुलिवर उनके सारे के सारे शिप्स ले आया है. बेटा उन दिनों जब लड़ाई होती थी, बिकॉज दे वर आइलैंड्स, दे यूज्ड टू फाइट विद शिप्स. शिप में आर्मी बैठकर आती थी, फाइन, और तभी वो आकर दूसरे के ऊपर अटैक कर देती थी. जितने भी सोल्जर्स होते थे नेबरिंग आर्मी के, फाइन, वो ऐसे शिप में बैठकर दूसरे आइलैंड पे जाकर अटैक करते थे. तो उन्होंने क्या किया, सारी आर्मी को प्रिजनर बना लिया. फाइन. एंड ultimately Gulliver was responsible for this victory. उनको लगा हम गुलिवर की वजह से जीते हैं. तो they gave that news to the king of Lilliput. King was very, very happy. He was overjoyed without any investment. उसको लगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी हम लोग जीत गए. So he was very happy and he rewarded Gulliver and he made Gulliver his chief advisor as well. Fine. उन्होंने गुलिवर को अपने चीफ एडवाइजर की जगह दे दी. And Gulliver was made chief advisor. And moreover, after a few days, when Gulliver was staying there, the palace was set on fire because of certain reason. किसी वजह से, fine, there broke a fire in the palace. Palace में आग लग गई जो king का palace था. Fine. So Gulliver did what? By using the ships, he took water from the sea. Fine, to extinguish that fire. उस आग को बुझाने के लिए गुलिवर ने शिप्स में पानी लाकर फटाफट से पैलेस के ऊपर डालना शुरू कर दिया. एंड फायर इमीडिएटली गॉट एक्सटिंग्विश्ड. आग बड़ी जल्दी से बुझ गई बिकॉज गुलिवर वाज ह्यूज, स्ट्रॉन्ग. फाइन. तो उसने अपनी पावर को यूज करके, फाइन, जो पैलेस था उसको फिर से ठीक ठाक कर दिया. एंड किंग वॉज वेरी, वेरी हैप्पी. फाइन. एंड आफ्टर दैट किंग वॉज डूइंग एवरीथिंग by taking the advice of Gulliver. King उसके बाद गुलिवर की जो थी सलाह हर जगह लेते थे. उनको लगा कि गुलिवर बहुत ही इंटेलिजेंट है, ह्यूज तो है ही, पावरफुल तो है ही. उनको लगा कि उन्हें गुलिवर की हर जगह पे सलाह लेनी चाहिए, गुलिवर से हर बात पूछ के करनी चाहिए. When he made Gulliver his chief advisor, rest of the advisors they got envious and they got jealous. जो बाकी के एडवाइजर थे बेटा, उनको जलन हो गई. उनको लगा कि अब उनकी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा. फाइन. अब गुलिवर की ही हर जगह पे विक्ट्री है, अब गुलिवर की ही हर जगह पे पूछ है, अब हम क्या करें. तो वो आपस में डिस्कस करना शुरू हो गए कि हाउ टू kick this Gulliver out of Lilliput or how to kill Gulliver, because they were very, very jealous of Gulliver. Fine. And they started, fine, इंस्टिगेटिंग का मतलब उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए गुलिवर के खिलाफ. उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, योर हाइनेस, वी हैव हर्ड द रूमर्स दैट गुलिवर इज बिकमिंग मोर पावरफुल डे बाय डे एंड सून ही इज टू कंकर ओवर दिस लैंड ऑफ लिलीपुट एंड he'll take over you and he'll become the king of Lilliput. फाइन. उन्होंने कहा कि योर हाइनेस, बादशाह, गुलिवर जो है वो दिन ब दिन और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है. हमने ये सुना है कि वो जल्दी से, फाइन, इस लिलीपुट को एक्वायर कर लेगा, इस पे कब्जा कर लेगा और वो किंग बन जाएगा. तब आप क्या कहोगे. जो बादशाह थे बेटा वो बहुत ज्यादा चालाक नहीं थे. उन्हें लगा कि लिलीपुट अगर मेरे हाथ से निकल गया तो मैं क्या करूंगा. उन्हें लगा गुलिवर सच में ये करेगा.
तो उन्होंने क्या किया, वो डिसाइड किया कि गुलिवर को ब्लाइंड कर दिया जाए, फाइन, उसकी जो डाइट है वो आधी कर दी जाए, एंड ही शुड नॉट बी अलाउड टू विजिट द टाउन। तो राजा ने कहा हम गुलिवर को डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते बिकॉज उसने हमारी जान बचाई है। उन्होंने तो कहा उसको डेथ पेनल्टी दे दी जाए, जो एडवाइजर्स थे, पर राजा ने कहा आई विल नॉट गिव डेथ पेनल्टी टू हिम, आई विल ओनली ब्लाइंड हिज आईज, fine, and I will only keep him out of the town and he will be reducing his diet ताकि वो बहुत वीक हो जाए। ये बात जो थी बेटा, राजा के जो गुलिवर का एक बहुत फेवरेट जो था बंदा था पैलेस में, he came to know about it and he ran to Gulliver to explain this. He said to Gulliver that this is what is going to happen, and Gulliver said, okay, I'll talk to king, maybe he can change his mind, but king has already changed, king has already decided about everything, no one could change his intentions. king की जो intentions थी, उनकी जो मंशा थी, उसे कोई भी change नहीं कर सकता था। तो king अपनी आर्मी को लेकर गुलिवर के पीछे भागे। तो गुलिवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। Suddenly, fine, a plan came to his mind and he started with those ships of Blefuscu. उसने क्या किया, जो नेबरिंग आइलैंड था उसके शिप्स को लिया, उसके शिप्स को लेकर वो नेबरिंग आइलैंड की तरफ चलना शुरू हो गया, थ्रू द वाटर, थ्रू द बे। अब वो लोग जो थे वो पानी में गुलिवर का पीछा नहीं कर सकते थे बिकॉज उनका साइज बहुत स्मॉल था एंड दे वुड हैव गॉट ड्राउन्ड। सो गुलिवर शिप्स को लेकर फाइन नेबरिंग आइलैंड पे पहुंच गया, और वहां के जो लोग थे वो लिलीपुट से भी अच्छे थे। उन्होंने गुलिवर को खूब वेलकम किया, और गुलिवर को लगा कि गुलिवर ने तो उनके शिप्स चोरी किए थे, इवन देन दे हैव वेलकम गुलिवर देयर, फाइन। सो दे टुक गुलिवर टू द किंग ऑफ ब्लेफुस्कू, एंड किंग ऑफ ब्लेफुस्कू आल्सो वेलकम गुलिवर, फाइन, एंड ही सेड दैट यू कैन स्टे हियर फॉर एज मच एज टाइम यू कैन। गुलिवर वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इनका बिहेवियर इतना अच्छा क्यों है। देन किंग टोल्ड हिम कि जो उसके शिप्स थे वो बड़े ही एक्सपेंसिव थे, एंड उनके जो शिप्स हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाए थे, फाइन, तो मतलब उनके लिए वो बहुत बहुत कीमती हैं, और आप उन शिप्स को वापस ले आए हो, इसलिए आप यहाँ पे जब चाहो, जितनी देर चाहो, यू कैन स्टे। सो गुलिवर स्टार्टेड स्टेइंग देयर एंड ही डिसाइडेड कि वो अभी इसी आइलैंड में रहेंगे। तभी गुलिवर के पास क्योंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, दिस आइलैंड वाज आइलैंड ऑफ ड्वार्फ पीपल, सो गुलिवर वाज स्लीपिंग अराउंड द सी शोर ओनली। वो समुद्र के किनारे एक माउंटेन या एक चट्टान को सहारा लेकर उस पे सो जाते थे। एक दिन गुलिवर वाज रोमिंग अराउंड द सी शोर, देन ही सॉट हिज रेस्क्यू बोट देयर, जो कि बहुत ही बैड कंडीशन में थी, बहुत खस्ता हालत में थी, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, बट ही सॉ दैट रेस्क्यू बोट। तो ही थॉट कि मैं इस जगह से वापस इंग्लैंड जा सकता हूँ, अपने घर जा सकता हूँ। जब उसने रेस्क्यू बोट को देखा, देन ही इमीडिएटली टॉक टू किंग दैट ही हैज सीन अ रेस्क्यू बोट ऑन द सी शोर, and if rescue boat can be repaired with the help of the king and his army, he can always go back home and meet his parents and friends. King immediately agreed. King of Blefuscu was good and he immediately agreed. And then Gulliver started repairing that boat, fine, with the help of the soldiers, with the help of the army, fine. And finally he decided to leave for England on this boat, and the king and the people of Blefuscu bid him a good farewell. उन्होंने उसको खूब सारा सामान दिया रास्ते में खाने पीने के लिए, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो. And he started his journey back home in that rescue boat. But that rescue boat was very, very small, fine, and he could not, travel in that rescue boat for a long time because रेस्क्यू बोट एक तो बहुत छोटी थी, एक उस पे ट्रेवल करते करते गुलिवर एग्जॉस्ट कर गए थे, फाइन. और उन्होंने क्या किया, वो ट्रेवल करते करते एग्जॉस्ट कर गए थे. आफ्टर कपल ऑफ डेज गुलिवर फाउंड अ शिप इन द सी. जब वो ट्रेवल कर रहे थे, करते करते एग्जॉस्ट हो गए थे, ही लॉस्ट होप. उन्हें लगा कि अब वो कभी घर नहीं पहुंच सकेंगे. तो उन्होंने इमीडिएटली एक शिप देखा, और वो जो शिप था, फाइन, उन्हीं की तरफ आ रहा था, लकीली, फाइन.
and Gulliver started yelling for help. He said, please help me, please help me. And the captain for that ship, fine, he heard Gulliver crying for help. तो उन्होंने गुलिवर को कहा कि आप कौन हो? तो गुलिवर ने कहा कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे इंग्लैंड जाना है. Then that ship person, fine, threw a rope from the ship towards Gulliver. उन्होंने गुलिवर की तरफ रोप फेंका और गुलिवर को शिप में ले लिया. And then Gulliver started climbing with that boat towards the ship, and Gulliver, went into the ship. And that captain helped Gulliver in eating. Fine, he took good care of Gulliver, and Gulliver was good in few days. And then they both started their journey back towards England. Fine. And after a few days, Gulliver reached his land safe and sound. And after reaching the land, he wanted to share his journey. He wanted to share his experience with everyone, but no one was believing him. So that was today's story, a parody. Parody is an adventure story with humor. So that's what I have told you today. That's the Gulliver story. Tell me, how was it? Did you people like it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It was very interesting. अच्छा बेटा, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? फाइन, हमने क्या सीखा? हम सब ने क्या सीखा इस स्टोरी से? फटाफट से. Ma'am, that we should never give up our... Yes, best thing is we should never give up. We should never give up. We should always keep on trying. We should always help others. Yes, we should always help others, and we should always keep on trying. Ma'am, we should always be intelligent. Yes, we should always be intelligent. We are intelligent. Beta, we are intelligent. Every child is intelligent. Every child is super intelligent and is made super intelligent by God. Okay, now next story will be narrated by Meena ma'am. Meena ma'am, over to you. Meena ma'am will be sharing the story of fairies. Ma'am? Yeah, Hamrin. Ma'am, I tell you moral of the story? Yes, please. Ma'am, in this story, we learned that we have to be strong and keep trying it. Yes, we should never and stop. Be intelligent in any situation. Yes, we should not give up, be it any situation. Meena, over to you. Meena, are you hearing me? Excuse me, ma'am. Yes, Ruchika. Yeah, I'm here. Just give me 2 minutes. All right, Meena. All right. Yeah. Ma'am, according to me, we should not trust anyone until we have first-hand proof. Yes, of course. Of course, we should not trust anyone until we have first-hand proofs. Exactly. Inayat? Inayat? Yes, ma'am. How long your story is gonna take? Today we have Inayat with us. She is also planning to narrate a story. Inayat, how long you are planning to take? story तैयार हुई? बेटा I'm starting now. 1 minute. Ma'am, my cousins have also write a story. Can they also narrate? Beta, we can narrate only one story, single story. Fine, but how much time you will take? Ma'am, it will take 2 or 3 minutes. We will have it. We will have it. एकांश बेटा, last time हमने मोगली वाली story सुनाई थी. आप recording सुन लीजिएगा. Okay. So who is Inayat and shall I start? Yes, Meena, you start. They will be narrating after you. Okay. Yeah, please start, Meena. Yeah. Okay. आज हम today we listen to the story of Flowers of Gratitude. All of you switch off your mics and cameras. Bani, Inayat, switch off your cameras, baby. Okay, Meena, start.
Yeah. There lived a very rich man in a village. वो रिच मैन एक फार्मर था. वो अपनी फार्म से he was very rich. He was very abundant. He was very prosperous. उसके पास सब कुछ था. वो उसके फार्म से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आते थे. उसके पास he had a lot of good food to eat. He had a big house. He had a lot of servants. उसका एक बेटा भी था. He was always making merry, खाता पीता, having enjoying his life. They had a lot of servants in their house. They were always living very happily. They did not know any they were always living a happy life, always partying, having food. You know, in the एक बार क्या, but one day this rich man, this rich farmer, he dies. But after he dies, everything, उनका जो फार्म है वो बैरन हो जाता है. डू यू नो व्हाट बैरन मीन्स? वो बंजर हो जाती है. लाइक उस पे जो भी कुछ भी क्रॉप्स, nothing grows in that land. As soon as the rich man dies, rich farmer dies, his farm also becomes barren. वो बंजर हो जाती है और वहां पे कुछ नहीं होता. तो ये फार्मर का बेटा है और he does not know what to do. Before that he was always living very happily. He was not doing any work. He was only he didn't know what work to do. अब जब उसके पापा चले गए, उसको पता नहीं था अब क्या करना है. He was very very worried. He was always remembering how he was enjoying his life, how many servants he had, always how happy he was, how his father was there around to do everything for him. अभी अभी मैम ने बताया फादर्स डे का. वो अपने डैडी को याद कर रहा था. जब डैडी थे कितना अच्छा था सब कुछ. Now because daddy is not there, how I am feeling now. I am feeling so alone. He not only lost the wealth, he was also feeling alone because his father was not there. एक बार क्या होता है, वो ऐसे ही अपने फार्म में बैठा होता है. न्यू मून सॉरी तो वो एक न्यू मून नाइट होती है. तो वो बहुत. हेलो, did anyone say something? Meena, your screen is not visible. Meena, your screen is Ma'am, your screen is not visible. Oh, sorry. 1 minute. I thought I usually present the entire screen. So let me do that. I just shared one window. You can share your entire screen. That will be better option. Yeah. So shall I start from the beginning? No. It's absolutely okay. You just start from where. Yes, exactly. This slide only. तो वो बहुत चिंता में था. लाइक चिंता मतलब एक तो चिंता में था कि कुछ हो नहीं रहा, फार्म में कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा. अब मैं क्या करूं. और उसको याद भी आ रहा था उसके डैडी के साथ वो कैसा था, वो कितने अच्छे दिन थे, क्या हो गया, व्हाट विल आई डू नाउ. ऐसे बहुत चिंता में था. ऐसे चिंता करते करते रात हो गई. एंड it is a new moon night. Do you know what a new moon night means? न्यू मून नाइट मतलब जब कोई मून नहीं होती, नाइट पे आपको कोई मून नहीं दिखती, डार्क मून या न्यू मून बोलते हैं, उस अमावस्या बोलते हैं. बिल्कुल उस दिन बिल्कुल मून नहीं होता, विजिबल नहीं होता मून. इट्स मून गेट्स वैनिश्ड, वैनिंग मून इज देयर. ऐसे अंधेरे में बैठा था. जब आप बहुत चिंता में होते हैं, ऐसा होता है आपको पता भी नहीं चलता कि अराउंड क्या हो रहा है. एंड ही डिड नॉट रियलाइज दैट इट वाज वेरी डार्क एंड ही डिड नॉट रियलाइज इट. वो दैट्स हाउ ही वाज फीलिंग. पर क्या होता है, सडनली देयर वाज अ लॉट ऑफ
अब तो न्यू मून है, न्यू मून के टाइम में बिल्कुल अंधेरा होता है, बट सडनली देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइट। और वो उस जहां पर रोशनी होती है तो वो उस तरफ देखता है, ये आज तो न्यू मून है, ये इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, व्हाट्स हैपनिंग। ही इज वेरी सरप्राइज्ड एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, ही लुक्स। तो वहां पे ये ही सीज दिस फेरीज और छोटे छोटे, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था ना एल्व्स, एल्व्स के बारे में, ये छोटे छोटे एल्व्स है फेरीज के साथ। तो फेरीज, फेरीज क्या, आप फेरीज क्या होते हैं, फेरीज नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं। जहां पे बहुत नेचुरल सराउंडिंग्स है, आपको फेरीज वहां पे मिलती है। और जब वो देखता है कि ये न्यू मून के टाइम में इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, तो वो फेरी को देखता है एंड ही डज नॉट नो व्हाट टू थिंक। और जब जब वो जिससे पहले ये रोशनी वहां पे वो देखता है, ही विल बी क्राइंग। तो वो फेरी आके पूछती है, आप क्यों रो रहे हो, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई आर यू क्राइंग एंड व्हाई आर यू सिटिंग अलोन लाइक दिस। तो वो बोलता है, हम इस दिस में हमारी फार्म जो है वो बंजर पड़ गई है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। पहले यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स होते थे, हमें इससे बहुत अच्छी बिजनेस मिलती थी, पर अब कुछ नहीं रहा। एंड ही और भी रोने लगता है। तो वो फेरी बोलती है, डोंट वरी, मैं इसका हल, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू, पर एक कंडीशन है। वो तो बहुत खुश हो जाता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो व्हाट इज योर कंडीशन पूछता है। वो बोलता, तो वो बोलती है, इस पूरे जमीन में जो आपका फार्म है, एक छोटा सा एक प्लॉट मेरे लिए, जहां पे मैं अपने चॉइस की फूल मैं ग्रो कर सकती हूँ, जो मैं अपनी गॉडेस की पूजा में यूज करूंगी। अगर आप वो मेरे लिए कर सकते हैं, इफ यू गिव मी अ स्मॉल लैंड वेयर आई कैन ग्रो माई ओन फ्लावर्स, तो मैं आपका पूरा फार्म हरा कर दूंगी। ये तो बहुत छोटी, वो तो बहुत छोटी जगह मांगी थी उसने इतने बड़े फार्म में, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, और खुशी खुशी उसने यस बोल दिया। और उसके बाद फेरी ने अपना वॉन्ड, इसको कैन यू सी दिस, उसके हाथ में क्या है, ये वॉन्ड होता है, इसको वॉन्ड बोलते हैं। तो उसने अपना जादू चलाया, उसने अपने वॉन्ड का जादू फार्म पे चलाया, और पूरा पूरा फार्म हरा भरा हो गया। एंड सब कुछ पहले की तरह होने लगा। पहले की तरह सब नौकर चाकर आने लगे, आके वहां काम करने लगे। Vamsi, please switch off your mic. Vamsi, switch off your mic, beta. तो जो सब जो सब नौकर काम छोड़कर चले गए थे, सब वापस आ गए, सब पहले की तरह सब काम होने लगा। ही इज वेरी हैप्पी। और फेरी भी खुश थी, वो अपने फूल तोड़ के लेकर जाके अपनी गॉडेस की पूजा, जो गॉडेस, वो एक गॉडेस की पूजा करती थी, तो उसके लिए उसको फूल मिला, एंड शी वाज वेरी हैप्पी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सो उस ही अगेन उसके पास पहले की तरह बहुत सारे नौकर चाकर थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ फूड, ही वाज एंजॉयिंग हिज लाइफ, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। पर एक दिन क्या हुआ, वो जो जिस किंगडम में था, उसका राजा वो बीमार पड़ गया। और वो कुछ भी, आप देख सकते हैं, ही इज द किंग, ही इज उसके ही इज जस्ट होल्डिंग हिज हेड, उसको ही इज वेरी टायर्ड, एंड वॉट एवर कुछ भी दवाई दे उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ही वॉज लाइक he was willing to do anything to get cured of his illness। और वो अपने डॉक्टर से पूछता है, अब क्या करे, ये तो मेरी हालत तो एक और भी ज्यादा वर्स हो रही है, तो व्हाट शुड आई डू। तो एक डॉक्टर जो है, ये उसके हाथ में स्क्रोल है, उसको स्क्रोल बोलते हैं, एक पुराना स्क्रोल मिलता है उसको, और उस स्क्रोल में लिखा होता है कि एक फूल का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है।
वो फूल का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल इसी की तरह होता है। जो ये फेरी फूल तोड़ रही है, बिल्कुल उसकी तरह के एक डिस्क्रिप्शन का एक फूल के बारे में बोलता है। तो उस फूल के रस को आपको देंगे तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। देन द किंग इज वेरी हैप्पी। वो अनाउंस कराता है कि ऐसा एक फूल है, जो भी ये फूल लाकर हमें देगा, और एंड वी विल मेक मेडिसिन आउट ऑफ इट। उनके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड, बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड देंगे। वी वांट दिस फ्लावर, ऐसी एक अनाउंसमेंट करते हैं। तो जब ये अनाउंसमेंट वो फार्मर सुनता है, जो फार्मर का बेटा था, वो देखता है इट्स द सेम एज व्हाट द फेरी इज ग्रोइंग फॉर द गॉडेस। तो ही इज वेरी हैप्पी। अब तो मेरे पास ये फूल है, इफ आई गिव किंग का फेवर मुझे मिल जाएगा, सो आई मस्ट डू दिस। पर वो फेरी से पूछता भी नहीं। ही नेवर आस्क्ड द फेरी इफ इट्स ओके। तो वो क्या करता है, ही जस्ट प्लक्स द फ्लावर्स और वो भागने लगता है पैलेस की तरफ। जब वो भागने लगता है, वो रात का टाइम हो जाता है और फेरी फार्म में आती है। जब वो फार्म में आती है और देखती है कि फूल नहीं है, वो रो पड़ती है, अरे मुझे ये फूल चाहिए थी पूजा के लिए। एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग। एज सून एज शी क्राइज, जो पहली एक टीयर ड्रॉप गिरी, जो उस फार्मर के हाथ में फूल थे सब मुरझा जाते, पूरा पूरा ड्राई हो जाता है। और जब वो लौट कर आता है फार्म में, वो देखता है कि पूरा फार्म भी पहले की तरह बंजर हो गया है। सो उसका फार्म भी नहीं, वो फूल भी नहीं रहे और फार्म भी नहीं रहा, एंड ही नॉट गेट टू सी द फेरी अगेन। ओके। There were no flowers, there were no fairies. Just So because you can, just because वो gratitude जो था वो नहीं रहा. He was not thankful to the fairy. क्यों मीना? Yeah. So वो क्या होता है? Why did the flowers dry? वो flowers मुरझा क्यों गए? मैम कैन आई स्पीक? Yeah. उसको सारा ग्रो करके दिया था और उसके टीयर ड्रॉप से वो हो गए। Yeah. Naira कुछ बोल रही थी. Naira was also saying something. मैम क्योंकि उसने प्लग किया था फ्लावर, फेरी ने उसको सजा दी। फेरी ने एक्चुअली सजा नहीं दिया, एक्चुअली वो दुखी थी। फेरी तो उसका हेल्प करना चाहती थी। फेरीज, ओके, मैं फेरीज और जैसे कि लास्ट वीक मैंने एल्व्स के भी बारे में बताया था, दे नेवर वांट टू डू एनी बैड थिंग टू ह्यूमंस। They don't want to harm anyone. They don't want to harm anyone. वो किसी को हार्म नहीं करते, इवन इफ समथिंग बैड इज डन टू देम। तो जैसे रूपिका ने कहा, बिकॉज ऑफ हर टीयर ड्रॉप्स द फार्म वेंट बैरन, पहले की तरह बंजर हो गई, और एंड द सेम वे वो फूल भी ड्राई हो गए। तो उसको परमिशन लेनी थी फेरी से, क्योंकि फेरीज ने इतनी बड़ी मदद की थी उसकी। शी हैड रेस्टोर्ड हर फार्म। वो फार्म जो पहले हरा भरा था, वो पूरा बैरन हो गया था, और फेरी की वजह से ही हैड बिकम प्रॉस्पेरस अगेन। प्रॉस्पेरस मतलब रिच हो गया था, उसके पास सब कुछ पहले की तरह हो गया था। बट व्हाट हैपेंड? तो उसको फेरिस को खुश रखना चाहिए था। ही शुड हैव इन फैक्ट आस्क्ड और इफ शी वांटेड एनीथिंग मोर। पर वो फेरिस की परमिशन भी नहीं ली और तोड़ भी दिया। एंड और बिकॉज फेरिस दे डोंट, वो कन्फ्रंट नहीं करते, देखो सी यू डिड दिस टू मी, ऐसे नहीं पूछते। शी जस्ट फेल्ट बैड। शी डिडंट वांट हिम टू लाइक उसको पनिश नहीं करना चाहती थी। शी डिडंट वांट टू पनिश,
It's just because वो thankful नहीं था, उसकी वजह से ये हुआ. Because he was not thankful, this happened. जैसे अब हम अर्थ पे क्या हो रहा है, हम लोग थैंकफुल नहीं है मदर अर्थ पे. जो भी मिलता है हम उसको ठीक से यूज नहीं करते, वी ओवर यूज, वी वेस्ट, यू नो. तो इसीलिए इतना ये जो ग्लोबल वार्मिंग ये सब हो रहा है. सो वी शुड बी ग्रेटफुल, वी शुड मेक प्रॉपर यूज. ठीक है, दैट्स ऑल. तो फेरीज, मैं और भी फेरीज इंफॉर्मेशन देनी थी, बट एक जनरली फेरीज क्या होता है, नेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड दे कैन डू अ लॉट विद नेचर. इफ यू आस्क फॉर फेरीज हेल्प, आपकी अगर कोई गार्डन है, यू कैन आस्क फॉर फेरीज हेल्प सो दैट एवरीथिंग turns out good, more you have more flowers. Yeah, ऐसा कुछ. Yes, you can pray to fairies and they can come for help so that you can have more flowers in the garden. Yes, Yeah, that is absolutely correct. Okay, yeah. Inayat, you can narrate your story in 2 minutes. After that, we are going to have a group photo and wind up the session. Okay. Okay, ma'am. Shall I start? Yes, please. My story is Snow White. Once upon a time, there was a princess called Snow White. Her mother passed away when she was born. Her father married again. He married the evil queen. She was rude and unkind. One day, she ordered her trusted servant, Cadora, to kill Snow White and take her to the forest. Cadora was about to kill Snow White when she ran for her life. She walked for days. She was hungry, tired, and thirsty. She got to a little house in the forest. The dwarves lived there. They became very good friends with Snow White. Snow White worked for them while they were out in the mines mining. They lived happily ever after. Moral: if you are kind, then kindness will give you reward. True. Kind. We should be always kind. That's nice, Inayat. So all of you, please switch on your cameras for group photo, today's group photo, and smile. You're supposed to give a big, big smile. Inayat, congratulations. This was nice. All of you, please switch on your cameras. Meena, Ruchika, so that we can have a group photo. Vamsi, look here. Great. So, one more. That was good. So, thank you very much, all of you. Stay blessed, stay hopeful, stay safe. Lots of love. See you next week. Bye-bye. Bye, ma'am. Good day, ma'am. And everyone, do wish Father's Day. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day. Excuse me, ma'am. Yeah? Ma'am, shall I narrate next week's story? Yes, of course, you can. Okay, Yes. ma'am. Thank you. Yeah, okay. Bye-bye. Bye-bye, ma'am. Stay blessed.